आज सी प्रॉब्लम है। तो विराज गुड इवनिंग। तो हम लोग एक एक करके ये सारा चीज को देखेंगे। आज टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, कैमरा बार बार बंद हो रहा है। आई थिंक बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है और मेरे कैमरा को ज़्यादा गर्मी लग रहा है शायद। ऐसे मुझे भी गर्मी लग रहा है, मेरा भी पसीना चल रहा है, लेकिन मेरा कैमरा बार बार बंद हो रहा है। आई डोंट नो वाई। तो क्या है, अभी जो देखे 2 बार मेरा कैमरा बंद हो गया। अब देखते हैं तीसरा बार ये कितने देर में बंद होता है। तो लेट अस सी। फिर से रिपीट करते हैं। 2 बार तो रिपीट कर दिए, तीसरा बार शुरू से रिपीट करते हैं। ओके, कट, यहां तक कट। नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लेक्चर नंबर 5, जिसमें कि 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करना है। नंबर 1, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज MTP, and second one will be the sexually transmitted disease or sexually transmitted infections. When we call the sexually transmitted infection, the abbreviation will be STI, and when we call sexually transmitted disease, then it will be called STD. In this session we will discuss in detail what is the medical termination of pregnancy, that is MTP, in what condition this is legal, and in what condition, in which condition this is illegal. We will see in details. You can say in some cases when some complications is there, either complications in the case of newborn baby that will come on the earth, or the mother that will deliver it. In both the conditions, termination is allowed. Medical termination means legally abortions of the pregnancy is known as the medical termination of pregnancy. Then there are many conditions and situations, and up to what limit and up to which age or which day termination of pregnancy is allowed, we will discuss in detail. And there are many different types of diseases also present in the world. For example, HIV, that is AIDS, hepatitis B, etc., which are important causes and spread through the infections by sexually. So we will discuss in detail all these things in today's session. First of all, this is Trivan Kumar Bharti, BSc in Biotechnology, MSc in Zoology, B.Ed, M.Ed, 3 times net qualified, विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल में गवर्नमेंट टीचर in government of Assam, net 3 times qualified, northeast SLET qualified, more than 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education for government of Assam, more than 12 research papers in international journals. So, and this is the schedule from Sunday to Friday, Saturday closed. Our institution used to remain Saturday closed, and our classes regularly on the regular basis from Sunday to Friday continue, in which in the morning from 8 a.m. for UGC net, which is eligibility for assistant professor in colleges and university, and currently educational strategy part C, lecture 3 was today morning, and this class is at from 7 p.m. NEET biology for class 12 and 9 p.m. NEET biology for class 11. Okay, see, medical termination of pregnancy, intentional or involuntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy or induced abortion. समझ में आए? इंटेंशनल, यहां पर 2 टर्म का यूज किया गया है। क्या क्या है? एक है इंटेंशनल या वॉलेंटरी, मतलब जानबूझ के अपने सारे होशो आवाज में सोच समझ के अगर प्रेगनेंसी को बिफोर फुल टर्म अगर खत्म कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, या एबॉर्शन को इंड्यूस किया जाता है, तो उसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहेंगे। फुल टर्म क्या होता है? 9 मंथ। अगर 9 मंथ के पहले इसको अबॉर्ट कर दिया जाता है तो MTP कहलाएगा। नियरली 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year. मतलब समझ जाओ कि एक साल में लगभग 45 से 50 मिलियन कंसीव्ड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, मतलब प्रेगनेंसी को खत्म किया जाता है। अगर जितना जन्म होता है पूरे साल में, अगर उन बच्चों के साथ भी अगर कंपेयर करते हैं तो 1/5
मतलब 5 में से प्रत्येक 5 में से एक बच्चे को अबॉर्ट कर दिया जाता है, या 10 में से 2 बच्चे को अबॉर्ट कर दिया जाता है। मतलब अगर ये भी डिलीवर होता तो पॉपुलेशन में अच्छा खासा इंक्रीज होता, मतलब 45 से 50 मिलियन बच्चे प्रत्येक साल जुड़ता। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि सिर्फ पॉपुलेशन ही तो मायने नहीं रखता, क्योंकि वो जो बच्चा जन्म लेने वाला था जिसको कि टर्मिनेट कर दिया गया, वो भी तो एक जीव था, उसे भी तो जिंदा रहने का अधिकार था, उसे भी तो धरती पे आने का अधिकार था, लेकिन बिफोर बर्थ उसे खत्म कर दिया गया। क्या वो जीव नहीं था? उसका अपना कोई राइट नहीं है? डेफिनेटली राइट है। लेकिन कई सारा सिचुएशंस ऐसा क्रिएट हो जाता है, कई सारा, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में भी बताए थे, तो कई सारा सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि टर्मिनेशन मस्ट हो जाता है। हो सकता है जब वो धरती पे आता, जब वो जन्म लेता, तो फुल टाइम के लिए अप टू होल लाइफ वो सरवाइव नहीं कर सकता, या उसे काफी झेलना पड़ता, मतलब पूरे जन्म तक, या मदर को झेलना पड़ता। तो ऐसे कंडीशन में बेटर है वैसे प्राणी को, वैसे ऑर्गेनिम्स को जिंदा रहने से कि वो चला जाए। ऐसे ये कहने में तो काफी इमोशनली होता है, बट यू पीपुल आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। तो डॉक्टर इमोशनली नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर इमोशनल सोचे, इमोशनल हुए, तो वहां पर काम नहीं कर सकेंगे। जो डॉक्टर का प्रोफेशन है, विच दो प्रोफेशन दैट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट इज वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड। अब वहां पर अगर डॉक्टर ही इमोशनल हो जाएगा तो नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन जैसे कि बताए कि वहां पर जान पे हो, काफी इमरजेंसी सिचुएशन हो, या रेप वगैरह के केस में, तो ऐसे केसेस में एबॉर्शन अलाउड है। लेकिन अगर फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड, अगर जेंडर के आधार पे, अगर जेंडर पता कर लिए, चाहे एमनियोसेंटेसिस हो या अल्ट्रासाउंड हो, कैन यू लिसन मी? अभी कुछ ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, आज मेरा कैमरा बार बार बंद हो रहा है। तो फिर भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम, मतलब अभी ही अगर कैमरा बंद हो जाएगा तो बिना कैमरा का चलेगा, मतलब मेरा ये स्क्रीन दिखेगा तुम लोगों को, मेरा पेन चलेगा, मेरी आवाज आएगी, ठीक है। तो एनी प्रॉब्लम किसी को, मतलब मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा, मेरी आवाज आएगी, क्योंकि कैमरा बंद हो जाएगा तो मेरी आवाज आएगी, मेरा पेन चलेगा, ये स्क्रीन नजर आएगा। एनी प्रॉब्लम टू? सभी को रेडी हो रहोगे पूरे क्लास तक? बस मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा। ओके, लेट अस सी। तो यहां पर क्या है, इंटेंशनल, जानबूझ के टर्मिनेशन हो रहा है। सो एमटीपी हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, दो इट इज नॉट मीन फॉर दैट पर्पस। हालांकि ये पॉपुलेशन को काफी लेवल तक कंट्रोल कर रहा है, प्रत्येक 1/5 बच्चे को दुनिया में आने से ही रोक रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। ये जो मेडिकल टर्मिनेशन बनाया गया था, इसलिए नहीं बनाया गया था कि उसको खत्म कर बच्चे को मारने में यूज किया जाए। इवन अभी के समय में तो इतना ज्यादा इलीगली इसे यूज किया जाता है कि फीमेल फिटिसाइड किया जाता है, और जिसके अगेंस्ट में 1971 में कानून बनाना पड़ गया। उसके बावजूद भी अभी देखो अबॉर्शंस का केस, जेंडर जान के कि किस जेंडर का बच्चा होने वाला है और उसको टर्मिनेट किया जाता है। जब ये देखोगे डेटा प्रत्येक ईयर इतना ज्यादा, हम जो बता रहे हैं तुम्हें कि 1/5 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी, 1/5, ये तो वो डेटा है जो कि रिकॉर्ड में आया, मतलब जो कि इंस्टीट्यूशनल एबॉर्शन करवाया गया है। इंस्टीट्यूशनल बोले तो जो हॉस्पिटल वगैरह में या ट्रेंड प्रोफेशनल के थ्रू करवाया गया। लेकिन सोचो बहुत सारे विलेजेज इंडिया का ऐसा है जहां पर कि प्रत्येक साल हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में फिटिसाइड होता है, एबॉर्शन करवाया जाता, क्योंकि वहां पर वो लिस्टेड नहीं है, इलीगल तरीके से करवाया जाता, पार्टिकुलरली इन इंडिया। तो जो कि बहुत ही ज्यादा खराबी की चीज है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और अपने इंडिया में बहुत ही ज्यादा पांव पसार लिया है ये चीज, जिसे कि खत्म होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेट अस सी नाउ,
हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है वही डेटा के बारे में जो इंस्टीट्यूशनल एबॉर्शंस वगैरह है, इसीलिए अपने टॉपिक का नाम ही है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और जो इन 2017 एक्ट आया था इसके अगेंस्ट में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017, ठीक है, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट है। ये अमेंडमेंट लाया गया इसीलिए क्योंकि पहले ऑलरेडी 1971 में इससे रिलेटेड एक्ट ऑलरेडी आ चुका था, इंडिया में कानून बन चुका था। क्या होता है ये? इट वाज इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ रिड्यूसिंग इलीगल एबॉर्शन एंड कंसिक्वेंट मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी। क्या होता था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया गया, ऐसा एक्ट, क्योंकि उस समय बहुत ही ज्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनइंस्टीट्यूशनल टर्मिनेशन बहुत ही ज्यादा करवाया जाता था फीमेल फिटिसाइड के लिए। अगर जन्म लेने वाली बच्ची है, लड़की अगर होने वाला है तो उस कंडीशन में मार दिया जाता था, और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा जाता था। आगे अगर टाइम बचेगा तो तुम लोगों को वीडियो दिखलाएंगे। मतलब ये काफी इससे क्या होता था ना कि काफी कई सारी मदर्स का एबॉर्शन के टाइम में डेथ हो जाया करता था, बच्चे के साथ साथ बहुत ज्यादा डेथ हुआ करता था लड़कियों का। तो ऐसी सब चीज को रोकने के लिए कानून बनाया गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 with some strict conditions to avoid its misuse। ये जो बनाया गया था इसमें कुछ कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन डाला गया था ताकि इसका कोई मिसयूज ना हो। Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticide which are reported to be high in India। तो उस समय जो फीमेल फिटिसाइड वगैरह हो रहा था, इनडिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि अगर लड़का हो रहा है तो धरती पे आने दो, जन्म लेने दो, लेकिन अगर लड़की पैदा होने वाली है तो मार के खत्म कर दो। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए, ये डिस्क्रिमिनेशंस को खत्म करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। लेकिन तुम्हें जान के हैरानी होगी कि आज तक ये सही ढंग से लागू नहीं हो पाया, और इलीगल तरीके से जैसे उस समय होता था उस समय से अभी भी होता है। इसीलिए मेल फीमेल रेशियो में इतना ज्यादा वेरिएशन है। बहुत सारे स्टेट का देखोगे जबकि 50-50 का चांसेस होता है और मेल फीमेल रेशियो लगभग बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं पर तो 827 है, 827 फीमेल्स ऑफ 1000 मेल, मतलब प्रत्येक 1000 मेल पे 827 भी कहीं कहीं, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है और बहुत ही ज्यादा बिकॉज ऑफ द फिटिसाइड, फीमेल फिटिसाइड, और वो भी इलीगल तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो अलाउड नहीं है, इसे इलीगल घोषित कर दिया गया है। वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपी और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। ये जो एबॉर्शन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसे अलग अलग कंट्री में यही चीज का नाम अलग अलग है, लेकिन कुछ कंट्री में तो अलाउड है लाइक इंडिया, लेकिन बहुत सारे कंट्री है ऐसा, तुम लोग नेट पे सर्च करके देखना कभी, बहुत सारे कंट्री ऐसा है जो कि कंप्लीट बैन है एमटीपी पे, मतलब किसी भी कंडीशन में एबॉर्शन कर नहीं सकते। ये कई सारा चीज से जुड़ा हुआ है। फॉर नाउ अब यहां पर सवाल आता है, according to this act a pregnancy may be terminated on certain consideration grounds within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner। इस एक्ट के अनुसार कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है 12 सप्ताह के पहले, मतलब विद इन 12 वीक्स, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर में अगर टर्मिनेशन किया जा रहा है तो कम से कम वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब वन रजिस्टर्ड डॉक्टर का उसमें ओपिनियन होना चाहिए, उसके बिना नहीं होगा। तो ये तो है अगर 12 सप्ताह के पहले अगर हो रहा है तो 12 वीक्स। इफ द प्रेगनेंसी हैज लास्टेड फॉर मोर देन 12 वीक्स बट फ्यूअर देन 24 वीक्स, अगर 12 सप्ताह से ज्यादा हो गया है लेकिन 24 से कम है
पहले ये 20 था, अब बढ़ा के इसको 24 किया गया है। तब वहां पर कम से कम 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन होना पड़ेगा। ओपिनियन फॉर्म इन गुड फेथ दैट इज रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट, मतलब कि वहां पर 2 डॉक्टर्स को लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यहां पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जरूरी है, तभी जाके उस कंडीशन में हो सकता है। अदरवाइज ये 12 सप्ताह के पहले करना है, तब जाके 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर का जरूरी पड़ेगा। अब बच्चों यहां पर कई सारा केसेस आता है, जैसे कि यहां पर देख रहे हैं, यहां पर एक सीन दिखलाया गया है कि अगर ऐसा इसलिए है कि अगर 12 सप्ताह के पहले होता है तो उस समय तक में बोन्स वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन अगर 12 वीक से ज्यादा हो गया प्रेगनेंसी में तो वहां पर बोन वगैरह का फॉर्मेशन होता है। 12 वीक के पहले अगर किया जाता है तो कुछ मेडिकल किट होता है, मेडिसिन वगैरह का किट होता है, हार्मोनल किट होता है, वो डॉक्टर्स दे दिया करता है, तो वो मेडिसिन से ही ऑटोमेटिकली अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन जब 12 वीक से ज्यादा होता है तो डॉक्टर के द्वारा कुछ सीजर वगैरह जैसा इस ढंग का इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो कि टुकड़ों में काट काट के निकाला जाता है, हाथ काटा, पैर काटा। आगे चल के हम दिखलाएंगे कि किस तरीके से कितना बेरहमी के साथ एक एक पोर्शंस को काट के टर्मिनेट किया जाता है और निकाला जाता है थ्रू वेजिना। तो सोचो कि जिस बच्चे को मारा जा रहा है, क्या वो एक जीव नहीं था? डेफिनेटली जीव था, लेकिन यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस होता है कि यहाँ पर जब उसको डिलीवर किया जाता, जन्म दिया जाता, तो बच्चे के हेल्थ के ऊपर या मदर के हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं था। अगर ऐसे देखें, अगर हम लोग जीव को डिफाइन करें तो जो बताए कि जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो स्पर्म एंड ओवम में भी। नाउ द ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ सच प्रेगनेंसीज आर, मतलब किस किस कंडीशन में, किस किस ग्राउंड पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017। सी, पहला नंबर है, इफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और ऑफ ग्रेव फिजिकल और मेंटल इंजुरी। मतलब अगर वुमेन का, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उसके लाइफ रिस्क है या कोई भयानक फिजिकल या मेंटल इंजुरी हो सकता है, तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। There is a substantial risk that if the child is born, it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped। मतलब कि अगर बेबी अगर जन्म ले लेता है तो जो न्यू बॉर्न बेबी होगा वो फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल पैदा होगा या सीरियसली किसी दूसरे प्रकार की एबनॉर्मेलिटीज रहेगा, हैंडीकैपनेस आ जाएगा, तो उस कंडीशन में भी टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, एमटीपी इज डन टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज आइदर ड्यू टू कॉजल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेल्योर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स। अब ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा लूप होल छोड़ देता है। यहां पर क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि अगर मेथड, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए लेकिन वो फेल हो गया, तो उस कंडीशन में भी अबॉर्ट किया जा सकता है या रेप के केस में अबॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है कि जिसे भी करना होगा किसी और मेथड से वो अल्ट्रासाउंड या एमनियोसेंटेसिस करवा लेगा, फिर वो लिख देगा, बता देगा कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज किया था, वो फेल कर गया। मतलब ये यहाँ पर लूप होल है और यहां से इसका मिसयूज हो सकता है और मिसयूज होता है। अगला, एमटीपीज आर आल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूअस ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू मदर और टू द फीटस और बोथ। उस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन किया जा सकता है अगर जन्म लेने वाले बच्चे के लिए हानिकारक हो, वो भी भयानक वाला हानिकारक हो, माँ के लिए हानिकारक हो, या दोनों के लिए ही खतरनाक इंजुरी हो सकता है।
वैसे कंडीशन में भी टर्मिनेशन अलाउड है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। So MTPs are considered relatively safe during the first trimester, that is up to 12 weeks of pregnancy. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेफ होता है अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 सप्ताह के पहले अगर किया जाए तो। यहां पर तुम एक अल्ट्रासाउंड का फिगर देख रहे हो, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर का है। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस आर मच मोर रिस्की है, और जो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस कर जाता है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में चला जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। जैसा कि कुछ देर पहले बताए कि वहाँ पर बोन वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में टुकड़ों में पीस पीस काट के बच्चे को निकालना होता है, जो कि काफ़ी दर्द और कष्टदायक होता है, और उसमें मदर का भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। यह परमानेंटली हो सकता है ऐसे कंडीशन में कि अब वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए लायक ना बचे, या हो सकता है डेथ हो जाए। मतलब कई सारा कॉम्प्लिकेशंस आता है अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, मतलब 12 वीक के बाद अगर किया जाता है तो। और जितना ज़्यादा लेट अबॉर्शन होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वन disturbing trend observed is that a majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. सबसे बड़ा हेडेक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी के टाइम में ये है कि ये जो एबॉर्शन वगैरह किया जाता है ये अनट्रेंड प्रोफेशनल्स होता है, डॉक्टर्स नहीं होता, बस किसी के द्वारा अनसेफ तरीके से कर दिया जाता है, जो कि बच्चे के लिए भी काफ़ी फेटल होता है और माँ के लिए तो फेटल है ही। क्योंकि ऐसे कंडीशन में कई बार होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरी होता है, कई बार होता है कि बहुत सारा इन्फेक्शन हो सकता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है जो इलीगल तरीके से किया जाता है। वो जो तुम्हें 1/5 का डेटा बताया ना, वो इंस्टीट्यूशनल है, जो लीगल तरीके से एबॉर्शन किया गया है। लेकिन ये जो इलीगल तरीके से एबॉर्शन किया जा रहा है, अनसेफ तरीके से किया जा रहा है, ये बहुत ही फैटल और बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम का चीज है। Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child. और इसका सबसे बड़ा और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एमनियोसेंटेसिस करके बच्चे का जेंडर डिसाइड किया जाता है, जो कि जन्म अभी नहीं लिया, और उसके बाद एमटीपी किया जाता है। एक्चुअली तुम लोगों को, अगर तुम लोग रेगुलर क्लास किए होगे तो तुम्हें पता होगा कि ये एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। जब बता रहे थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स तो उस समय इसका डिटेल बताए थे। चलो हम एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे मान लो ये प्रेगनेंसी है, इतना छोटा नहीं होता। अब यहाँ पर क्या होता है, एक बड़ा सा निडिल के थ्रू जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, क्योंकि ऐसा है कि एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे की बहुत ज़्यादा वहाँ पर सेल्स होता है, तो इस निडिल की हेल्प से, बड़ा सा निडिल की हेल्प से वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है, फिर उसको कल्चर करके उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि मेल है या फीमेल है। तो उस कंडीशन को बहुत ही मिसयूज हो रहा है एमनियोसेंटेसिस का। फ्रीक्वेंटली स्पीकिंग, इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज फॉलोड बाय एमटीपी। और अक्सर क्या होता है, ज़्यादातर अगर फीटस अनबॉर्न बेबी अगर फीमेल है तो एमटीपी कर दिया जाता है। Such practices should be avoided because these are dangerous both for young mother and the fetus. और ऐसा करना बच्चे के लिए भी और जो माँ है, माँ के लिए भी हानिकारक है। जैसा बताया कि परमानेंटली स्टेरिलिटी आ सकता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, और इवन डेथ भी हो सकता है। तो इसीलिए इससे बचना चाहिए। और सही ढंग से देखें तो अभी के टाइम में पार्टिकुलरली इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में, जहाँ पर कि पुरुष प्रधान है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यहाँ पर ऐसा मान्यता है कि शांति तभी मिलेगा जब बेटे के द्वारा अग्नि दिया जाएगा हिंदू धर्म में। और खानदान को चलाने का काम, प्रोग्रेस करने का काम, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाने का काम बेटा करता है, बेटी नहीं करती है। जो कि अभी के टाइम के लिए तुम लोग का क्या कहना है, अभी के लिए ये सही है क्या? एक समय था जिस समय कि ऐसा हुआ करता था, और उसके पीछे भी हमारा समाज ही था जो कि लड़कियों को मान्यता नहीं दिया करता था। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, चाहे तो भी ना चाहे तो भी लड़कियों को मान्यता देना पड़ेगा, क्योंकि अभी के टाइम में लड़कियां कहीं पर भी लड़कों से पीछे नहीं है। तो फिर भी इतना सिचुएशंस होने के बावजूद भी, इतना एडवांसमेंट होने के बावजूद भी
अगर एमटीपी के लिए जाते हैं दैट मे बी आइदर इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल, बट दिस इज फुल्ली इलीगल। और जेंडर के लिए किल कर देना किसी जीव का, ये तो बिल्कुल ही इलीगल है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो पुराने समय के लोग थे अगर वो ऐसा सोचते हो तो चल सकता है, लेकिन तुम देखे होगे कि अभी भी हमारे समाज में इवन न्यू जनरेशन के लोग भी ऐसा सोचता है, जो कि सोच को बदलना पड़ेगा, तुम लोगों को बदलना पड़ेगा, हम लोगों को बदलना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, दैट इज एसटीआईज और एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या होता है? Infections which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infections or venerable diseases, that is VD, or reproductive tract infection RTIs। right to information नहीं, reproductive tract infections। ओके, तो अगर मतलब वैसा इन्फेक्शन जो कि ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल इंटरकॉर्स के द्वारा, तो उसे एसटीआईज या एसटीडीज कहेंगे, या उसे ही वेनरल डिजीज कहेंगे, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहेंगे, दोनों एक ही का नाम है। इसीलिए अगर कुछ और बोल दे, अगर वेनरल डिजीज बोल दे तो ये मत समझना कि सर तो बताए ही नहीं थे। इसीलिए यहाँ पर हर चीज है और प्रत्येक का पीडीएफ फॉर्म में तुम्हें दे दिया जाएगा, ठीक है सभी का। तुम इवन अभी तक में जितना क्लासेस हुआ है, चाहे वो 11 का हो या 12th का हो, क्लास के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होता है, वहां से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें शामिल हो जाओ, वहां पर भी पीडीएफ दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे इंस्टॉल कर लो। उसमें नीट का एक अलग से बैच क्रिएटेड है, तो तुम उसमें रिक्वेस्ट डालो नीट के बैच में जाने के लिए। वहां पर ये जितना भी क्लासेस है ये सब कुछ वहां पर सिलसिला सीरियली डाला जाएगा, A to Z जितना भी क्लासेस होता रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जितना भी स्टडी मटेरियल्स होगा सब कुछ दिया जाएगा। साथ ही साथ वहां पर बहुत सारा क्विजेज भी रहेगा और बहुत सारा मटेरियल्स भी रहेगा, जो कि तुम्हारे एग्जाम को पास करने के लिए काफी रहेगा। नाउ कमिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एसटीडीज। पहला नंबर है गोनोरिया, जो कि और बच्चों तुम्हें बता दूं कि ये सभी का नाम प्लस इसका कॉजेटिव एजेंट तुम्हें मेन रूप से याद रखना है। अभी हम लोग एक एक करके सबको डिस्कशन करने वाले हैं। पहला है गोनोरिया, जो कि निसीरिया गोनोरिया के द्वारा होता है। दूसरा है सिफिलिस, जो कि ट्रिपोनेमा पैलिडियम के द्वारा होता है। वैसे ही है जेनाइटल हर्ब्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्रैकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक है वह HIV, जो कि एड्स में कन्वर्ट होता है, जो कॉज करता है एड्स। क्लियर है बच्चों? यहां तक आगे बढ़ते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सम ऑफ दिस इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय, मतलब जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया और HIV मतलब बोले तो एड्स हो गया, ये दूसरे, ऐसा नहीं कि सिंपली सेक्सुअल इंटरकॉर्स से ही ये फैलता है, किसी दूसरे मेथड से भी फैलता है। तो वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, अगर इंजेक्शन नीडल को शेयर करते हैं तो उस कंडीशन में भी, मतलब एक ही नीडल को दूसरे लोग भी, मतलब कई सारे लोग यूज करता है, पार्टिकुलरली जो इलीगल तरीके से ड्रग्स वगैरह लेता है ना, वो लोग इसे यूज करता है। जो झोला छाप डॉक्टर सब होता है, मतलब तुम लोग नहीं, तुम लोग तो ट्रेंड प्रोफेशनल बनने वाले हो, ठीक है, ट्रेंड प्रोफेशनल्स, MBBS डॉक्टर बनने वाले। लेकिन जो रूरल एरियाज होता है गांव वगैरह में, वहां पर झोला छाप डॉक्टर्स हुआ करता है, जिसके पास किसी भी प्रकार का डिग्रीज नहीं है और कोई भी सावधानी वो लोग नहीं बरतता। तो वो क्या करता है, डायरेक्टली इसे यूज करता है, एक को यूज किया वही दूसरे को भी यूज किया। और क्या होगा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी शेयर करने से होता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से भी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है तो मदर से फीटस में भी जाता है। डन, मूव। अब यहां पर दो सिंबल देख रहे हैं, एक है यह है रेड क्रॉस, ये एड्स के लिए अवेयरनेस, एड्स के लिए अवेयरनेस है। और जो दूसरा वाला केस देख रहे हैं जो कि मेरे जस्ट पीछे में था, ये दूसरा वाला जो केस है, ये केस है हेपेटाइटिस वायरस का, जो कि लीवर को अफेक्ट डालता है, लीवर इसमें स्वेल कर जाता है और हमारे लिए काफी खतरनाक होता है। ओके,
So except for hepatitis B, genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. अगर तुम हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शन को छोड़ दो तो जितना भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है सबका प्योर क्योर अवेलेबल है, बट कंडीशन है कि अर्ली डिटेक्ट हो जाए। तो अगर लास्ट टाइम में जाके अगर पता चलता है कि ऐसा कोई डिजीज हो गया है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हाँ, हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शन, इसका कोई इलाज नहीं है। मेडिकेशन के द्वारा लाइफ टाइम को बढ़ाया जा सकता है, मेडिसिन वगैरह देके थोड़ा ज्यादा दिन तक जिंदा रहा जा सकता है, जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन इसको ठीक नहीं किया जा सकता। अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है। सो सेक्सुअली अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ डिजीज आर माइनर एंड इंक्लूड, ये जितना भी डिजीजेज है इसका सबका अर्ली सिम्टम्स क्या है? इचिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, स्लाइट पेन होना और स्वेलिंग्स होना, ये सबका कॉमन जेनेटेलिया पे। ओके, जेनेटेलिया में इचिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, स्लाइट पेन होना एंड स्वेलिंग होना, ये कॉमन सिम्टम है। ये अर्ली टाइम में सभी में यही आता है, बाद में जाके चेंज होता है। सो इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब उसमें शो नहीं करता ये इन्फेक्शंस की इसमें ये डिजीज है, और वो काफी दिन तक रह सकता है। इसीलिए जो अनडिटेक्टेड रहता है इसलिए स्प्रेड भी ज्यादा करेगा। फॉलोइंग फैक्टर डिटर्स द इन्फेक्टेड persons from going for timely detection and proper treatment। अब ये कुछ फैक्टर्स है जिससे कि सही पे उसका जानकारी प्राप्त नहीं चल पाता है, जिसके कारण होता है कुछ ज्यादा फैलता है। फॉर एग्जाम्पल सोशल स्टिग्मा अटैच टू द एसटीडी। सोशल स्टिग्मा हमारे समाज में जुड़ा हुआ है कि जरूर कुछ गड़बड़ किया है तभी तो इसमें एसटीडी आया, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आया। और इसी के डर से जो पर्सन्स में अगर इन्फेक्शन आ जाता है, शुरू में ही आता है तो डॉक्टर के पास विजिट नहीं करता। जब लास्ट फेज होता है, जब बचने का चांसेस कम रहता है, तब जाता है डॉक्टर के पास, जहां पर कि कई सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है। पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज PID सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं। तो पेल्विक इन्फ्लामेशन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, मतलब STIs का क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। क्या है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज PID हो सकता है। एबॉर्शंस, ये पेल्विक रीजन इन्फ्लेम कर सकता है, फूल सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। ठीक है। एबॉर्शंस हो सकता है अगर प्रेग्नेंट लेडी को पकड़ा है तो। स्टिल बर्थ हो सकता है, अगर प्रेग्नेंट है तो बच्चा जो जन्म लेगा मरा हुआ हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, मतलब मेन रूप से जो प्रेगनेंसी होता है वो यूट्रस में होता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होके कहीं और हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एग्जांपल है, फैलोपियन ट्यूब में हो गया, जिसको कि ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं, या किसी और जगह पे प्रेगनेंसी या तो ओवरी में ही हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसके बाद इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो सकता है, मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहीं पर भी कैंसर वगैरह हो सकता है। ओके, लेट अस मूव। STIs are a major threat to healthy society, मतलब ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ये मेजर थ्रेट है हेल्दी सोसाइटी के लिए। प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम में ये सभी चीज को मेजर कंसिडरेशन दिया जाता है। Though all persons are vulnerable to these infections, their incidences are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24। ऐसे ये डिजीज जो होता है सभी के लिए कॉमन है, सभी में हो सकता है किसी भी एज में, लेकिन 15 से 24 साल के एज में ये ज्यादा होता है, जिस एज से कि तुम लोग बिलोंग कर रहे हो। तुम लोग इसी एज से बिलोंग कर रहे हो जहां पर कि ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है, और इसका कारण ये है अवेयरनेस की कमी। और तुम लोग के क्लास में भी, स्कूल, कॉलेजेस, जहां पर भी होता है इस टॉपिक को सही से नहीं बताया जाता, और सही ढंग से डिस्कशन नहीं किया जाता, जिसका परिणाम होता है ये चीज, ज्यादा इन्फेक्शंस होता है, ज्यादा एबॉर्शंस होता है,
ज़्यादा एसटीडीज होता है वो 15 से 24 साल के एज में ही होता है, क्योंकि यही एज ऐसा है जिसमें कि बिगड़ने का टाइम आता है। और बिगड़ता क्यों है? क्योंकि सही जानकारी नहीं होता, सही नॉलेज नहीं होता। ओके, लेट अस मूव नाउ। You could be free of these infections if you follow the simple principles given below. तुम लोग ये सभी चीजें बच सकते अगर कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, जैसे अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, जिसे हम नहीं जानते हैं या बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स से बचना है तो उस कंडीशन में बचा जा सकता है। ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस, मतलब जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करें उसमें कॉन्डोम को यूज करें, क्योंकि कॉन्डोम सिंपली अनवांटेड प्रेगनेंसी से नहीं बचाता बल्कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाता है। इन केस ऑफ डाउट गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर्स फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन। अगर ये पता चल जाता है शुरू में, अगर शक होता है तो जल्दी से डॉक्टर को विजिट करना होगा और डायग्नोस्ट करवाना होगा और ट्रीटमेंट करवाना होगा ताकि इसको पूरी तरीके से ठीक हो सके। ठीक है, अब बच्चों हमारा टेक्निकल सपोर्ट नहीं हो रहा है, कई सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसीलिए अलग अलग प्रकार का जो डिजीजेज है जैसे क्लैमिडियासिस क्लेमाइडिया के द्वारा होता है, गोनोरिया, ये अलग अलग है, हर्पीस, हर्प सिम्टम्स, सिफिलिस, ट्रैकोमोनियासिस, ये सारा चीज को हम लोग थोड़ा सा अगले क्लास में देखेंगे। ऐसे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो ये सभी चीज को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज टेक्निकल प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तुम लोग भी देख रहे हो, और अभी और भी कई सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है। तो तुम लोग अगले क्लास में मतलब कल जरूर आना, और अगर पॉसिबल हो तो क्लास को, पॉसिबल तो है ही, लाइक करो और शेयर कर दो थोड़ा सा, ताकि और भी स्टूडेंट जुटे, क्योंकि तुम लोग शेयर नहीं करते तो ऐसा डरते हो कि अगर किसी और के साथ शेयर कर देंगे तो शायद वो डॉक्टर बन जाएगा, तुम नहीं बन पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, विद्या बांटने का चीज़ है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। ठीक है, सरस्वती के भंडार के बड़े अनोरक बोल, जो बांटे त्यों त्यों बढ़े, बिन बांटत समझ आते हो, खत्म हो जाता है। अगर जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, नहीं बांटोगे खत्म हो जाता है। सो बांटो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय।